मैम करूँ स्टार्ट? हाँ हाँ एक सेकंड मैम, एक सेकंड। Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe. I'm so blessed and grateful to this beautiful life. I'm so blessed and so grateful to have this beautiful day and the best moment when I attend this session. Thank you, thank you, thank you. I am healthy, I am happy, I am fit, I am active. Thank you, God. Thank you, universe, for everything. I am so blessed and grateful to have my parents, my mother, my father. They are blessings from God. They gave me good values and good education. Thank you for everything, Mama. Thank you, Papa. I am so blessed and grateful to my sibling, my brother, who lives, who loves me and care for me always. Thank you, Bhai, for everything. Thank you so much. I am so blessed and grateful to my life partner, Deepak. He is a blessing and he is the strongest man. He is the one I follow the most. He is perfect. Thank you so much. Thank you, God. Thank you, universe. I am so blessed and grateful to my daughter. She is loving. She is a genius child. She is very intelligent. She is happy, healthy, and active. Thank you, God. Thank you, universe. I am so grateful and blessed to Monica ma'am, who is giving me so much everything. Thank you, Monica ma'am. Thank you for everything. And this magical group who shares their experiences every day. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe, for the money I have. What I have in abundance. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much, ma'am. I'm one with God, and God is one with me. Thank you, thank you, thank you. thank you, Tanvi, for creating such wonderful gratitude. I loved it. Thank you so much, ma'am. Thank you. Love you all. Love you, ma'am. Amazing. Good. Very nice. You are past. अब आप सुजाता को अप्रोच करोगे तो सुजाता आपको स्पेशल डिस्काउंट भी देगी और थैंक यू टू सुजाता मैम कि वो हमें अपना कोर्स कराएंगी. यस सुजाता मैम यस प्लीज मैम. कंसिडर कर लेना. Right, so let us start the magical session of day 12. Great. A grateful heart is a magnet for miracles. So, whenever we do gratitude statements, we take our vibrations to the highest level and our heart becomes grateful, or we get eligible to attract many more good things. एंड जैसे कि आज ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट्स करने के बाद आप देखोगे, आप ट्रेडिंग में कदम रखोगे तो आप देखोगे पैसे ही पैसे आपके पास आएंगे. सुजाता इज अ पर्सन हु एक्चुअली is a wonderful person who has a mastery in trading. So she can guide you how to proceed, आप किस तरह लगा सकते हो, कैसे कर सकते हो, उसकी guidance बहुत अच्छी होती है. And when you enrolled into the course, the videos that she shows, उसके अंदर इतने systematic way है, जितनी बारी मतलब मैंने एक बारी करा तो मुझे इतना समझ नहीं आया. But when I started watching videos on daily basis, तो मुझे कत समझना आना शुरू हो गया, पैटर्न कैसे होते हैं, ट्रेडिंग कैसे होती है. तो वो सारी चीजें अब आना शुरू हो गई है. तो हमेशा ये मत सोचो कि एक ही बारी में आ जाएगा, बट डेफिनेटली यू नीड टू प्रैक्टिस. यू नीड टू बी इन टच विद सुजाता. सुजाता का एक टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर वो डे टू डे ट्रेडिंग का भी गाइडेंस देती रहती है. सो दैट वे इट इज. ओके मैम. मैम वैसे कुछ एज भी होती है क्या ये करने की, या कुछ ऐसा मतलब लाइक मेरी नेबर आंटी जो है शी इज प्रेयर मतलब करने की कोई नो. एज होती है? नो मैम नो. ओके. एज नहीं होती ऐसे, ट्रेडिंग की कोई एज नहीं है. बट ठीक है. जब सुबह उठे तभी सवेरा होता है ना. कोई बात नहीं, अपना करो. हाय सारिका. Hello, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग. हाउ आर यू? हाउज योर I'm हेल्थ? good. मैम बेटर है, ठीक हो रहा है अब. नारियल लगा रही है, नारियल का तेल वेल? मैम अभी तो छाले हैं तो सोफ्रोमाइसिन लगा रही हूँ.
ओह गॉड। तो उसमें से वो पस निकलती है ना, तो इसकी जगह पे एक और ट्यूब आती है सिल्वर बेंजोएट करके, व्हिच इज, सिल्वर एक्स। हाँ, सिल्वर एक्स या सिल्वर बेंजोएट कुछ ऐसे करके होती है, हाँ, हाँ जी। स्पेसिफिकली फॉर दिस, और बहुत जल्दी रिकवरी होती है उससे। अच्छा मैम, अभी तो मैम सोफ्रोमाइसिन लगा रही थी। Vancomycin इज नॉट गुड मेरे ख्याल से, मतलब मैं रिकमेंड करूंगा, आई विल नेवर रिकमेंड, बट ये मैं बता रही हूँ सिल्वर जाली जो है, दिस इज अ वंडरफुल क्रीम, वो आपको पता भी नहीं मैम आपने चलेगा। ना बिल्कुल सही कहा है। मुझे भी याद है, मेरे भाई ने एक बार बताया था, सिल्वर एक्स करके कुछ होती है, वो बहुत ज्यादा फायदा करती है जलने में। बहुत ज्यादा है सुफ्रामाइसिन, इट विल टेक टाइम, सुफ्रामाइसिन इज ओनली फॉर नॉर्मल स्किन, इट इज नॉट फॉर बर्निंग। जहां आपका बर्न, जितना तुम्हारा बर्न है, ब्लिस्टर्स है, उसके ऊपर आपका वही चलेगी। अच्छा मैम, मैं चेंज कर लेती हूँ। हाँ, वो आपको डॉक्टर ने बोला है सुफ्रामाइसिन? मैम एक्चुअली एंटीबायोटिक्स चल रही है ना अभी, उस पे डॉक्टर कह रहे सिल्वर एक्स, उन्होंने भी बोला था, कह रहे तब लगाई थी जब जला था, क्योंकि नाइट में जला था 9:30 के करीब। तो मैं अगले दिन मॉर्निंग में 9:30 10 o'clock डॉक्टर के पास पहुंची थी। तो मैंने कहा उस वक्त तो मैं सिर्फ पानी में ही रखा, कह रहे उस वक्त सिल्वर एक्स लगा लेते अब। तो फिर अब ब्लिस्टर्स हो गए, कह रहे ये जख्म जो है ये सोफ्रोमाइसिन से ठीक होगा, सिल्वर एक्स जब जलन हो रही होती है तब लगाते हैं, वो ठंडक देती है उस चीज को। अच्छा, तुम्हें भी वो ठीक कह रहा होगा। तुमने पानी में कैसे, आजकल तो पानी में डालते ही नहीं है हाथ, तभी तो तेरा वो ब्लिस्टर्स हो गए। यस मैम, उस वक्त समझ ही नहीं आया, इतनी ज्यादा जलन हो रही थी आजकल तो कि। सबसे अच्छा है टूथपेस्ट लगा दो, हाँ जी मैम, टूथपेस्ट टूथपेस्ट लगा लो, लगाना था। एलोवेरा लगा लो, मतलब इट इज, मतलब आजकल के टाइम में तो पानी डालता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं लगाते पानी। हाँ जी, वो और गलती मैम हो एक गई। गूंदा हुआ है ना, गूंदा हुआ आटा ही रैप कर लो, हाँ मैम जी, हाँ एक बार जी। मेरे बिल्कुल पापा को एक भी लग गई थी ब्लिस्टर नहीं बहुत होता। ज्यादा, हाँ, बहुत ये ज्यादा बुरी ब्लिस्टर्स तरह होने जल की गया था। वजह से दिक्कत हुई है ज्यादा, दर्द अदरवाइज होती तो। है, दर्द होती है, दर्द बहुत है मैम, दर्द ही तो नहीं जा रही। दर्द तो सिल्वरेक्स से ही जाएगी, अच्छा अच्छा। सुफ्रामाइसिन से दर्द हो जाएगी। देखो सुफ्रामाइसिन स्किन को हील करती है, बट हाँ अब जी, हाँ जी। ब्लिस्टर जो है आपको दर्द देते रहते हैं, तो वो हाँ तो जी, जाएगा ही उसी से फिर। अब ब्लिस्टर दीदी होगा, सोफ्रामाइसिन ना इन्फेक्शन से बचाएगी, इन्फेक्शन नहीं होगा उससे। क्योंकि पस भर गई है ना। हाँ, वो इस इन्फेक्शन से बचाएगी सोफ्रामाइसिन। या तो एक टाइम पे सुफ्रामाइसिन लगा ले, एक बार सिल्वरेक्स लगा ले। हाँ, एंटी हाँ फंगल हाँ। होती है ना वो। हाँ, अच्छा अच्छा। हम्म। मैं ऐसा करती हूँ, सिल्वर एक्स भी मंगा ही लेती हूँ, फिर वही लगा के देख लेती हूँ, क्या पता थोड़ा दर्द में आराम हो लगा लो जाए। फिर सुफ्रामाइसिन, वही एंटी फंगल ठीक कह रही है वो, कि वो स्किन के लिए होती है, विच इज गुड। हम ये नहीं कहते हैं, बट मतलब मैंने तो जितने भी अभी केसेस देखे उनमें सिल्वरेक्स का ही होता है। मतलब अगर कोई जल जाए कुछ, एक तो होम्योपैथिक मेडिसिन आटे का यूरिन है, वो तो बहुत ही अच्छी है, जो कि लगाओ ब्लिस्टर ही नहीं होते। क्योंकि मेरे पापा थे डॉक्टर, मतलब एक सामने, घर के सामने एक लेडी रहती थी, उसके ऊपर पूरा गरम गरम घी गिर गया, ओहो। वो वो आ गई दौड़ी दौड़ी पापा के पास, तो पापा ने फिर यहाँ पे सारा उसका ना आटे का यूरिन लगाई थी, हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है उसकी, होम्योपैथिक की। आटा, गूंदा हुआ आटा। गूंदा हुआ आटा लगा दो, गूंदा हुआ आटा जैसे उसी टाइम लगा दो, गूंदा हुआ आटा लगा दो तो उससे नहीं अच्छा। होता। एलोवेरा लगा लो, उससे नहीं होता। अब पानी और बर्फ तो अवॉइड कर, पानी क्या करता है, पानी अंदर चला जाता है तो वो ब्लिस्टर जैसे, वो जैसे तुम्हारे बने हैं ना वैसे बन जाते हैं, इसलिए पानी तो बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। टूथपेस्ट लगा दो, हम्म। कोलगेट लगा दो, हाँ जी मैम, कोलगेट ही सब कह रहे हैं, वही गलती हो गई, वो कोलगेट नहीं क्योंकि लगाई। कोलगेट मैम एकदम मैं से मैं अंदर मैं डलती है। बताती हूँ, मेरे पापा को एक बार ना जल गया था पाँव में, वो तेल जल गया था बहुत बुरी तरह से, तो मैंने ना तुरंत जो है ना इंस्टेंटली एलोवेरा लगाया था। उससे वो बिल्कुल भी, वो ना तो हाँ, जलन हुई एलोवेरा उसमें, इज वो वेरी गुड, वेरी वेरी रुक गुड। गया तुरंत इंस्टेंटली। इंस्टेंटली उसी टाइम लगाओ एलोवेरा, तो इज, एलोवेरा तो सभी चीजों के लिए इज वेरी गुड। अरे हम ये किस रिकॉर्डिंग चल रही है, एनीवे। सॉरी। सो कल हमने दिया था मैजिक मॉर्निंग मोमेंट, यू वेक अप कैसे करना है टच, और क्या है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट एंड हाउ यू कैन शेयर विद दिस। मैम मैं सुबह तो भूल गई थी करना, क्योंकि आदत में नहीं है ना, हैबिट में नहीं है अभी ये चीज। और लास्ट टाइम भी मेरा ये सेशन मिस हो गया था, इसलिए मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। तो इ- इस बार मैंने कहा, सोचा था रात को सोते वक्त मैजिक स्टोन के साथ बैठी थी, सोचा था कि सुबह पक्का करना है, बट सुबह सुबह मैं क्लास के लिए उठी, तो दिमाग मेरा थोड़ा इसी में रहता है,
पेन हो रही थी, लेकिन मैंने कहा मेरा दिमाग सारा इस सेशन में चला गया, नहीं मैं सेशन अटेंड करूंगी, दर्द हो रही है फिर भी मैं सेशन अटेंड करूंगी, फिर मैं भूल गई। फिर मुझे अभी थोड़ी देर आफ्टरनून तक मुझे याद आया, मैंने कहा देखूं कल का होमवर्क क्या था, होमवर्क करूं, क्योंकि ओरली करना होता है, लिख मैं कुछ पा नहीं रही हूँ। तो मैंने कहा चलो होमवर्क करती हूँ। मैंने जैसे ही देखा होमवर्क, फिर मेरे ध्यान में आया शिट ये तो मॉर्निंग में करना था। फिर मैं लेकिन ना मैं तब से ही हर चीज के लिए ही करे जा रही हूँ। बहुत मतलब अच्छा। मैंने मॉर्निंग में नहीं किया, आई एडमिट इट, बट मैंने आफ्टरनून से लेके अभी तक आई एम कंटिन्यूइंग डूइंग। ग्रेट ग्रेट। एनीबडी एल्स? और किसी का कोई एक्सपीरियंस मॉर्निंग का करते टाइम कुछ? when you get up in the morning you start doing thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you. वीरेंद्र, आज आकांक्षा कहाँ है? यार she's at her mom's place, तो I'm not sure मेरी बात भी नहीं हो पा रही है उससे, वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज रहते हैं थोड़े। मैम कल सीरियल इकट्ठे देख लिया होगा इन्होंने। पक्का लग रहा है दोनों की लड़ाई हो गई होगी मैजिक मैजिक डस्ट। I'll be back now, 2 मिनट दीजिएगा। आज तो पक्का देखेगा, आज तो बीबी तो है ही नहीं, आज तो पक्का देखेगा ये। The happiest people do not necessarily have the best things, they simply appreciate the things they have. तो जो आपके पास है उसका एप्रिसिएशन करो, ठीक है? और लेट अस स्टार्ट। At times our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. मतलब जब कभी क्या होता है, हमारा अपना बोर हो जाते हैं, हम अपने से थक जाते हैं, तो हमें कोई और इंसान हमारे को एक ताकत देता है, एक इंस्पिरेशन देता है, एक स्पार्क दे देता है हमारे को, और वही हमारे जिंदगी का मकसद बन जाता है। सो दिस इज मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, क्योंकि आपकी लाइफ में भी किसी इंसान ने कोई डिफरेंस क्रिएट किया होगा। सो दैट इज व्हाट इट इज लाइक। तो आज का चैप्टर उनको डेडिकेट है जो कि जिन्होंने अपनी लाइफ दूसरों के लिए दी है, राइट? सो एट टाइम्स आवर ओन लाइट गोज आउट and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. और उन्होंने हमारे को ये गिफ्ट दिया है। अब जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं आई वॉज विद स्कूल, जब मैं वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल भी बनी, उसके बाद वो छोड़ा, मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करी। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के बाद आई जॉइन श्रीराम ग्रुप। श्रीराम ग्रुप के अंदर ना मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई कि यू मेक द करिकुलम फॉर द प्ले ग्रुप। उन्होंने नया स्कूल लिया था and they told me to do the curriculum for the play group. और मैं अपनी सारी 15 साल मैंने 11th-12th क्लास पढ़ाया था, तो मैं कह रही थी यार कम 11th-12th क्लास की टीचर, कहाँ मैं ये छोटे बच्चे 2.5 साल के बच्चे 18 महीने के बच्चे इनका करिकुलम बनाऊंगी। बट मैंने कभी, सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने पापा से सीखी थी इज नेवर से नो टू द अपॉर्चुनिटीज। सो जो भी आएगा उसको एज अ चैलेंज, एज एन अपॉर्चुनिटी लेके जस्ट गो हैड। तो मैंने कहा हाँ मैं कर दूंगी, हाँ तो कर दिया। बट इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि मेरा माइंड लेवल ऑफ थिंकिंग वॉज फॉर 11th and 12th क्लास, उनकी काउंसलिंग करना, उनका वो करना। बट इतने छोटे बच्चों के लिए कभी वो नहीं था। बट हाँ, my child was at that moment of time in 9th क्लास था मेरा बच्चा। बट मैंने अपने बेटे के टाइम पे भी मैंने बहुत मेहनत करी थी। मैं उसका टॉयज खेलती थी, खेलने जाती थी, बाहर लेके जाती थी, तो वो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस था। बट उसके बाद, लेकिन अभी तो नहीं था, बट उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं मैं करूंगी। एंड देन द स्कूल इन विच दे टुक ओवर, उस स्कूल के अंदर जाके क्लासेस में जा जाके टीचर्स से बात करके उनकी एक्टिविटीज देख के वो सब चीजें मैंने सीखना शुरू किया। देन आई डिड 2-3 कोर्सेज फ्रॉम ऑनलाइन ऑल्सो, तब इंटरनेट से मैंने वो कोर्स लिया। एंड देन वन ऑफ माई गुरु, जिसको मैं मीनाक्षी मैम जिनको मैं कहती हूँ, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी ये इसी करिकुलम को लिखने में लगाई, इसी करिकुलम की ट्रेनिंग में लगाई, तो उनकी मैं शैडो बन गई।
मतलब मैं आंख बंद करके उन पे विश्वास करती रही। तो 1-2 महीने उनके पीछे 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 उन्होंने जो ट्रेनिंग्स की, मैंने एक एक ट्रेनिंग अटेंड करी, मैंने रिकॉर्डिंग करी और उन रिकॉर्डिंग्स की जिस्ट निकाली। जब उनका देखती रही, करती रही, तो आई क्रिएटेड द करिकुलम। मतलब मेरी जिंदगी का मकसद ही चेंज हो गया, कहाँ मैं 11th-12th को पढ़ाने वाली और कहाँ मैं एक करिकुलम डिजाइनर बन गई प्ले ग्रुप का। एंड आई क्रिएटेड द मास्टरी इन दैट, क्योंकि मैंने रुकी नहीं, मैं उनके अंडर ट्रेनिंग करती थी, क्योंकि उन्होंने हर लेवल के स्कूल में पढ़ाया हुआ है। शी वॉज अराउंड 70 एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। उस टाइम की बात बता रही हूँ, आज से 10 साल पहले की बात बता रही हूँ। शी वॉज अराउंड 70 एट दैट टाइम, आज तो 80 हो गई थी। फिर वो हर स्कूल में वो ट्रेनिंग करती थी, तो मैं उनके उनके एज अ शेडो जाती थी। वो जैसे कहती थी मैं वैसे करती थी, तो आई बिकेम हर शेडो दैट वे। जब मैंने वो सीखा, वो सब किया, फिर पता चला कि एक स्कूल में ट्रेनिंग देने जाना है एंड शी इज नॉट वेल बिकॉज शी हैड अ प्रॉब्लम एट बैक, तो इंजेक्शंस लग रहे थे, तो वो नहीं गई। तो मेरे ऑफिस में बोला गया कि वो तो नहीं जा सकती, अब ट्रेनिंग कैसे करें। तो मेरी जो एक हेड है कादम्बरी में, उन्होंने बोला कि मोनिका, यू टेक द लीड, वुड यू बी एबल टू डू दैट? आई सेड डेफिनेटली। तो देन आई डिड द ट्रेनिंग एंड द बेस्ट पार्ट, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि मैम को रिप्रेजेंट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मेरे लिए ये था कि मैं कोई चीज छोड़ ना दूं, मैं कोई चीज छूट ना जाए। पूरे नोट्स के साथ मैंने बना रखा था और पूरी ट्रेनिंग करी, एंड विद ग्रेस ऑफ गॉड इट हैपेंड सो वेल एंड एवरीबडी अप्रिशिएटेड। वहां से मेरा जो है ना ट्रेनिंग का और वो सब चीजें शुरू हुआ, और मेरा ये जो जर्नी प्री स्कूल्स की और प्ले स्कूल्स की जर्नी की मास्टरी सब वहां से शुरू हुई। क्योंकि मैं आई रियली 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 शो ग्रैटिट्यूड टू माई mentor Meenakshi ma'am, who actually taught me how, मतलब बच्चों का साइकोलॉजी, बच्चों की एक एक चीज, मतलब मुझे ना अंदर जैसे कि मेरे ब्लड में जाती है, बिकॉज मैंने उनका एक एक सेशन इतने ध्यान से सुना हुआ है। एक एक वर्ड जो वो बोलती थी ना, मेरे लिए वो बाइबल था। आई यूज टू राइट एवरीथिंग, आई यूज टू राइट एवरीथिंग। और मेरे नोट्स बनाने का तरीका और वो सब चीजें इतनी स्ट्रांग हो गई कि मैं मेरे नोट्स से ही मैं पता नहीं कहाँ निकल के चली गई। सो आई क्रिएटेड दैट करिकुलम, और श्री राम का करिकुलम आज मेरा ही करिकुलम फॉलो हो रहा है, मेरा ही सब कुछ हो रहा है, विच इज अमेजिंग। आई जस्ट लव दैट। सो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी कोई होगा ऐसा इंसान जिसने आपको रास्ता दिखाया, जिसने आपको ऐसी ऐसे राह पे दिया, जिसको आज भी आप शत शत नमन करते हो, जिसको आप उसको ग्रैटिट्यूड शो करते हो। उन लोगों को याद करो। आप कोई कोई शेयर करना चाहेगा? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? Yeah, ma'am, I would like to share one. Um there was a friend, close friend ही था मेरा। आई मतलब कि बहुत सालों से कांटेक्ट था हम लोगों का, बट इट वाज ऑन ऑन एंड ऑफ। लेकिन 2016 से एक ऐसा स्पार्क आई गॉट फ्रॉम हिम कि कथक में, मतलब स्टार्ट जब मैंने किया था तब मैं कहाँ पे थी, एंड सडनली आई टूक अ ह्यूज लीप। वाह, मतलब मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। एंड मैं हमेशा एक वहाँ पे स्टेज है, वो स्टेज के बाहर से मैं जब भी जाती तो मैं सोचती कि आई वांट टू परफॉर्म हियर, आई वांट टू परफॉर्म हियर, आई वांट टू परफॉर्म हियर। वाह, ये विजुअलाइज करते करते करते, और वो हमेशा कहता था, एंड ही नोज मी सिंस वी वर 13 और 12 ऐसा था। तो इतनी बातें करते 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 वो स्पार्क देते देते, नो यू कैन डू इट, एमिली है तो क्या हो गया, यू कैन डू इट, यू हैव दैट थिंग इन यू, यू कैन डू इट, डू इट, डू इट करते करते मेरा सब कुछ सेट करने के बाद, 2-3 घंटे के रियाज के बाद, डेफिनेटली आई गॉट अ ब्रेक टू परफॉर्म देयर। एंड दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे कि जब वहाँ पे परफॉर्म किया। वाह, और फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, मैं वहां पे परफॉर्म करती गई करती गई करती गई। एंड इट वाज दैट, सो आई वुड लाइक टू dedicate this chapter to him. वाह, वाह। आज आपको मौका मिलेगा, आज एक चैप्टर बिल्कुल वही बताने जा रहा है। So every Hmm. one of us has received help, support, guidance from other people at particular times in our life when we needed it the most. जहाँ हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी किसी की, और उसने हमारा हाथ पकड़ के हमें वहां तक लेके गया। ठीक है? So sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times
when one person touched us or changed our life. मतलब वो टाइम हम भूल जाते हैं, बट उसने डिफरेंस क्रिएट किया था. Sometimes you don't even realize the impact of a person had until well into the future. When you look back on your life and realize that a particular person has pivotal in magically changing the direction of your life for the better. मतलब उसी वो एक ऐसा पॉइंट था जो कि आपका टर्निंग पॉइंट हो गया, जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल पॉइंट हो गया, जिसे कहते हैं जिसके आपकी सोच चेंज हो गई, आपका थॉट चेंज हो गया, आपको इंस्पायर हुए और आपको कहां से कहां पहुंच गए. So the person may have been a teacher or a coach or an uncle, aunt, sibling, grandparent or any family member. मुझे याद है जब when I was in St. George's School, one of my student नितिन सिंह, वो लड़का इतना नालायक होता था, नालायक मतलब नालायक कहा जाता था उसको, और कोई ऐसा दिन नहीं होता था जो वो प्रिंसिपल रूम के बाहर नहीं खड़ा होता. हर दूसरे तीसरे दिन ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड प्रिंसिपल्स रूम. आज इसने ये कर दिया, आज इसने ये कर दिया, आज इसने ये ड्रामा किया, आज इसने वो कर दिया, आज इसने ये तोड़ दिया, आज इसने इसको सो एवरी डे ही यूज्ड टू बी देयर, यू नो. फिर मैं आई बिकेम द क्लास टीचर ऑफ दैट क्लास 9th C, मुझे अच्छे से याद है. मेरे को क्लास टीचर बनाया गया और मैं उसकी क्लास टीचर बनी मैं. और मैंने और मुझे बड़ा प्यारा लगता था बच्चा, क्योंकि मुझे ना नॉटी बच्चे बहुत पसंद है. जो बच्चे शरारतें करते हैं ना, दे आर एक्चुअली वेरी वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट. ये हमें सोचना पड़ता. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा नितिन यू बिकम द मॉनिटर यार, तुम देख लो ये कर लिया कर. उसको मैंने इतना इनकरेज किया. आई मेड हिम द क्लास मॉनिटर. आई टोल्ड हिम टू डू फ्यू थिंग्स. अच्छा ये देख, ये बच्चे ऐसे कर रहे हैं, इनको ऐसे करो, इसको ऐसे करो. एंड उसका वो कॉन्फिडेंस जो मैंने बूस्टअप कराया था एज अ क्लास टीचर, देयर वाज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज लाइफ, यू नो. अब जब वो मॉनिटर बन गया, ही बिकम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन. जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, तो शरारतें कम हो जाती हैं. तो उसका प्रिंसिपल मैम के रूम के आगे खड़ा रहना भी कम हो गया. सब हैरान हो गए, नितिन को क्या हो गया. एक बार प्रिंसिपल मैम ऊपर आई देखने, नितिन व्हाट हैज हैपेंड टू यू, नाउ यू डोंट कम एंड मीट मी. उनको भी लगता था यार नितिन क्यों नहीं आया कि हर दूसरे तीसरे दिन वही खड़ा होता था. तो कहता है मैम आई एम फाइन. कहता वो तो मैं देख रहा हूँ, तुम फाइन नहीं हो, तुम रोज नीचे खड़े होते तो मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ. So which was a good compliment for my class student, you know. फिर उसके बाद कहते it is of just because of Monica ma'am that he said this. You won't believe, उसने नेवी का एग्जाम क्लियर किया और ही बिकेम द नेवी में उसकी सिलेक्शन हो गई. अभी वो दिल्ली आया था, उसका कॉल आया मेरे पास कि मैम इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू दैट आई एम इन नेवी. मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आपका मेरी जिंदगी में आना था. व्हेन यू बिकेम द क्लास टीचर, यू ट्रस्टेड मी फॉर एवरीथिंग. वो कोई गलती भी करता था ना, तो मैं उसकी तारीफ करती थी. वाओ ग्रेट. सारे कहते थे मैम उसको ग्रेट कही जा रही है. क्योंकि एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जब सारे आपको क्रिटिसाइज कर रहे हो, सारे आपको शैतान कह रहे हो, सारे आपको डफर कह रहे हो, जब एक बंदा ऐसा मिलता है जो उसकी तारीफ करेगा, जो उसको कहेगा यू आर वेरी इंटेलिजेंट नितिन, आई एम सो हैप्पी. वो गलत भी करता था, मैं उसको तारीफ करती थी. तो उसका जो एनकरेजमेंट था ना, वो इतना ज्यादा हाइप हो गया कि वो कॉन्फिडेंस आना उसमें शुरू हो गया. चाहे नंबर कम आ रहे हैं या जो भी है, बट स्लोली एंड स्टेडली that confidence made him that he can do better than that, you know. तो फिर धीरे 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 उसकी काउंसलिंग भी करती थी, बात भी करती थी. वो मेरे को रोज मिलने भी आता था बिकॉज then I became the academic supervisor in my school. Then he used to meet me. मैम कैसे हो, बहुत बढ़िया. मैं अच्छा मैम मेरी गर्लफ्रेंड आ गई. मतलब he used to talk as if like a friend, you know. उसको ये लगता था कोई ऐसा बंदा मुझे मिल गया है जिसको मैं दिल की हर बात कर सकता था. और मैं मुस्कुरा के हंस देती थी. मैंने कहा फिर तूने गिफ्ट, अरे मैम पैसे ही तो नहीं है गिफ्ट. मैंने कहा ले मेरे से ले जा. आपसे नहीं ले सकता, मैं लूंगा तो अपनी कमाई से दूंगा, अपनी खर्ची में से दूंगा, पापा को कुछ पटाऊंगा कुछ. मतलब ही यूज्ड टू कम एंड टॉक. तो उसको इतना अच्छा लगता था कि somebody is there to whom I can talk to. उसकी शादी का उसने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि मैम आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम इन मुंबई.
तो आप आओगे? मैंने कहा नहीं बेटे, मैं नहीं, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं। आउट ऑफ द वे जाके उसने मैसेज डाला। अभी भी बहुत बारी मैसेज आता है, फोन करता है, मेरे बर्थडे पे फोन आया। तो आई फील सो गुड कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे आज भी याद करते हैं, जिनकी जिंदगी मैंने कुछ डिफरेंस क्रिएट किया। आई एम सो हैप्पी दैट वे, यू नो। एक दो बच्चे और भी है जिनकी मैंने काउंसलिंग की थी एंड आज की डेट पे बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। सो दैट इज व्हाट द टीचर इज अबाउट, टू गिव मेक डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। और मुझे यही बहुत चीज अच्छी लगती है कि तुमने अगर किसी की जिंदगी में एक डिफरेंस क्रिएट किया, कि उसकी लाइफ बना दी। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको अप्रिशिएट किया, दैट्स इट। सिर्फ एक अप्रिसिएशन, एक एनकरेजमेंट, और कुछ नहीं दिया। करा उसने खुद है, सब कुछ है। बट उस टाइम पे मैंने उसकी हेल्प करी जब वो बहुत लो था, एवरीबडी वाज क्रिटिसाइजिंग हिम। सो एट दैट टाइम आई वाज जस्ट स्टैंडिंग विद हिम एंड सेइंग नहीं, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू वंडर्स, यू नो। बस मेरा ये सारी बातें उसको इतना टच कर गई एंड his life is transformed. So that is what people needs, you know. Everybody is hungry for appreciation, everybody. तो जब appreciation हर एक को चाहिए, तो क्यों ना दे दे, क्यों ना करें। तो इसीलिए कीप appreciating, keep complimenting. The more you do it, the more you are happy and you are making others happy, right? So they may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest and became one of your greatest passions. तो वही बात हुई जब मेरी मीनाक्षी मैम ने ट्रेनिंग ली, मैंने मीनाक्षी मैम से, अब मेरा करिकुलम एक पैशन बन गया है। करिकुलम, प्ले ग्रुप के बच्चों का, टीचर्स की ट्रेनिंग करना, वो मेरा पैशन बन गया है। दिस इज व्हाट हाउ आई हैव ग्रोन विद हर ट्रेनिंग्स, यू नो. So maybe they were someone you didn't even know, and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. जैसे मैंने पहले भी सेशंस में बताया, you meet people because of a reason, season and lifetime. आपको लोग मिलते हैं रीजन से। मुझे नहीं पता, आपको रास्ते में एक दिन, यू नो, जब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का मेरे दिमाग में कैसे आया, when I was with Shriram, I was going to Jodhpur for the trainings, you know, ट्रेनिंग के लिए जाती थी। तो मेरे को रास्ते में एक मिस्टर नितेश करके कोई बंदा था, वो मिला था। तो ही वॉज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर इन जयपुर। वो बताया, उसने बताया कि ऐसे ऐसे ऐसे, एंड ही शेयर्ड हिज सेशन विद मी कि मैं ऐसे करता हूँ। उसने कुछ स्टोरीज बताई, कुछ वो बताया। तो मुझे समझ आया कि यार ये चीजें भी तो ऐड कर सकती हूँ, ये भी तो हो सकता है। वो सिर्फ एक दिन के लिए मुझे मिला था ट्रेनिंग, ट्रेन में एक रात हमने एक साथ बिताई थी, where my friend and we were traveling toward Jodhpur. He was also traveling toward Jodhpur, but he was going from Jaipur to Jodhpur. But we were going from Delhi to Jodhpur. But वो रास्ते में हम लोग वो हुए, रास्ते में जयपुर से चढ़ा था। तो जयपुर से जोधपुर की जर्नी जो 6 घंटे की जर्नी थी, जो भी घंटे की जर्नी थी, तो ही वॉज देयर। तो ही वॉज जस्ट शेयरिंग। मैंने बताया अपने बारे में कि मेरा ये बैकग्राउंड है, उसने बताया अपने बारे में। तो उसने कुछ कुछ स्टोरी सुनाई, कुछ कुछ हुआ, और मैंने कहा वाओ, दिस इज रियली नाइस, दिस इज वंडरफुल आइडिया व्हाट ही इज गिविंग मी। तो मैंने वो आइडियाज अपनी ट्रेनिंग्स में इंप्लीमेंट करने शुरू। तब मुझे समझ आया कि ट्रेनिंग्स के अंदर ये सारी चीजें, स्पाइसेस दैट वी नीड टू गो अहेड विद। तो ऐसे ऐसे कोई आपको कब मिलता है, कौन क्या कंट्रीब्यूट आपकी लाइफ में कर जाता है, यू नेवर नो। इट कुड बी फॉर 1 डे, इट कुड बी फॉर 5 days, इट कुड बी 6 months, इट कुड बी 2 years, कुड बी एनीथिंग, और इट कुड बी अ लाइफ टाइम। तो यू मीट पीपल बिकॉज ऑफ द रीजन, सीजन एंड लाइफ टाइम। तो आपको कंट्रीब्यूट करके चला जाता है। So that is how my trainings became very, very effective. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside by sharing her love of those things with me. All of them affected and changed the course of my life. ऐसे ही आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी मॉम कुछ को आपको कहती है नहीं ऐसे करो, नहीं ऐसे करो। वो छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर जाती है, वो आपके दिमाग में आ जाती है। जैसे कि मेरी मम्मी की बहुत सारी चीजें मुझे याद है। मैं जैसे अगर मैं किसी टेबल पे बैठी हूँ, मैं पैर नहीं झुलाते, मुझे नहीं पता होता क्या रीजन होता है पैर नहीं झुलाते। कुछ कुछ चीजें उनके अभी भी मैं याद करती हूँ। ऐसे नहीं, खड़े होके पानी नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। कहते क्या मम्मी ऐसे कैसी बातें करते रहते हो ना। आप उनकी एक चीज याद आती है, एक चीज याद आती है। सो एवरीथिंग हैज अ लॉजिक। मैंने अब जैसे कि मैं तुलसी कहते हैं, तुलसी को संडे को पानी नहीं डालते,
बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, मेरी मम्मी कहती है यस मैम। संडे को पानी नहीं डालते हैं, तो इसलिए कहते हैं संडे को तुलसी को पानी नहीं डाला जाता और तुलसी को चबा चबा के खाया भी नहीं जाता। तो मेरे को यस मैम। नहीं ठीक है, जब सब चबा चबा के खा रहे हैं, तुलसी को चबाने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब उसको चबाएंगे तो बल्कि अच्छा उसका जूस जाएगा तो अपनी इम्यूनाइजेशन स्ट्रांग होगी। तो इसका आपने पता चला कि when you eat तुलसी जब चबा के खाते हो तो उसके अंदर से एक ऐसा जूस निकलता है जो आपके टीथ को खराब कर देता है, आपके टीथ को गला, मरकरी होता है दीदी, हाँ मरकरी, मरकरी। वो टीथ को खराब कर देता है, तो इसीलिए उसको चबाना नहीं चाहिए, तो आप उसको निकलना चाहिए। सो देखो है बहुत छोटी सी बात, बट पता चलना चाहिए तो है, तो धीरे 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 वो चीज भी पता चलती है। तो जो लोग आपको गाइड करते हैं वो गलत नहीं करते हैं, बट तुम्हें पूछना जरूरी है कि रीजन क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Cooking became a passion of mine over 20 years. My love of books eventually led me to becoming a writer. अब जैसे मैं हरी चटनी बनाते हैं, हरी चटनी बनाते टाइम जैसे तुमने हरी चटनी बनाई, सब कुछ डाला, अगर आप उसके अंदर, क्योंकि बहुत गाढ़ी होती है, उसके अंदर पानी मिलाना होता है, अगर आप बर्फ मिला दो उसके अंदर तो उसका कलर ग्रीन ही रहता है, डार्क वैसा नहीं होता है, तो प्रॉपर ग्रीन रहता है, तो चटनी का कलर बड़ा अच्छा लगता है बहुत छोटे छोटे टिप्स, वही दादी मम्मा ये सारे सारे बताते रहते हैं, तो ये अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो ये भी तो एक तरह की आपकी लर्निंग है ना। सो सो दैट इज अ हैट्स ऑफ टू दादीज एंड यू नो नानीज, दैट वो दादी माँ के नुस्खे और ये सब ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you at the time, and I thought she was just teaching me to be polite. मुझे लगा polite है इसलिए थैंक यू करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि थैंक यू का कितना बड़ा रीजन है कि थैंक यू raises your vibrations। किसको पता था ये वाली बात? बट नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं कि कोई दे रहा है तो उसको थैंक यू करना जरूरी है, हमें तो बस ये किसी ने कुछ दिया तो उसको थैंक यू कर दो, दैट्स इट, और बाकी कोई लेना देना नहीं है हमारे को किसी से। She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. Today, you are going to think about the magical people who have impacted your life and find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of 3 people. आपने 3 लोगों के बारे में पता करना है, 3 लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो जिन्होंने आपकी लाइफ पे कंट्रीब्यूट किया है। 3 extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your 3 people, work with one person at a time. अब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक आपने एक एकांत सी जगह ले लेनी है। यू विल सिट ओवर देयर, यू विल इमेजिन कि वो बंदा सामने बैठा हुआ है और अपनी तरफ से ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर दो। रीजंस देना बहुत जरूरी है कि आई एम सो 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 थैंकफुल टू यू। जैसे कि मैं अगर अपनी मैं मीनाक्षी मैम को करती तो मैं उनको ये कहती, आई एम रियली 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 ग्रेटफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू यू मैम दैट आपने मुझे करिकुलम का एक एक चीज सिखाई, राइट फ्रॉम डिफरेंट एज, व्हाट एज ग्रुप नीड्स व्हाट एज ग्रुप नीड्स व्हाट स्किल, व्हाट एज ग्रुप नीड्स what kind of activities needs to be executed, what are the क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, एवरीथिंग मेरे को इन्फ्यूज कर दिया, मतलब इतना ज्यादा मेरे माइंड में घुसा दिया कि मुझे हर छोटी छोटी चीज, दैट मीन्स एक कलर यूज करते हैं, 2 कलर्स यूज नहीं करते, ऐसे यूज करते हैं, ये नहीं यूज करते, ये शार्प होता है, ये एवरीथिंग टेक्स केयर ऑफ थिंग्स। जब भी मैं कोई चीज करिकुलम बनाती हूँ, आई टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स कि ये चीज होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, राइट। सो मेक श्योर यू डू दिस, ओके, 1 person एट अ टाइम। और एक बार जैसे आपने एक को पूरा ग्रेटिट्यूड शो कर लिया, फिर आपने विजुअलाइज किया दूसरे बंदे का ग्रेटिट्यूड शो किया, फिर आपने तीसरे बंदे का, एक ही गो में करना है, टेक 1 or 2 minutes फॉर 1 person, ठीक है। बट क्यों? क्योंकि आप जब एक ग्रेटिट्यूड शो करते हो ना, वो एक डीपर लेवल चला जाता है, फिर नेक्स्ट करोगे और डीपर चला जाएगा, नेक्स्ट करोगे और डीपर चलेगा, एंड व्हेन यू आर शोइंग द ग्रेटिट्यूड इन अ डीपर वे, यू आर बेनिफिटेड। और जब आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे, हर ग्रेटिट्यूड का रिजल्ट मिलता है। जब आप ग्रेटिट्यूड शो करो, जस्ट शो द इंटेंशन, आई एम शोइंग दिस ग्रेटिट्यूड टू प्लीज गिव मी हेल्थ, प्लीज गिव मी हीलिंग्स, प्लीज हील माई बॉडी ऑल द टाइम। तो आपका कुछ भी ग्रेटिट्यूड शो करो, just show the intention, this is the intention, so you will see that things will be happening according to the intention.
Make sure you do this magical practice with all 3 people in one session. 2-2 मिनट लगाओ, 1-1 मिनट लगाओ, एक साथ करना. Because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, एक मॉर्निंग में किया, एक दोपहर को किया, अरे 3 करने हैं ना, सुबह दोपहर शाम, तो क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी भी लो होगी, उसकी इंटेंसिटी भी लो होगी, और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. मिलेगा तो उसका कम मिलेगा. So if you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. So if you really want to have magical results, just do it in one go. Here is an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words encouraged me. Touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream. I moved to France to work as an apprentice chef. I'm living my dream. I couldn't be happier. All because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. It's very important that you say the reasons why you are grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing results you get. You will see the magic explode into your life. From doing this practice, it numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. If you're not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person, address them as you are writing a letter. मतलब आप जैसे लेटर लिख रहे हो उस तरह से उसको ग्रैटिट्यूड शो करो. So when you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. तो अगर 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 आपको ध्यान हो, कौन था वो, आइंस्टाइन को देख लो. देन जिसको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था और बोला कि ये इसका दिमाग बिल्कुल तेज नहीं है, इज वेरी लो इन लर्निंग एंड ऑल दोस थिंग्स, बिल गेट्स को बाहर कर दिया था. बट उनकी मदर ने, उनके फैमिली ने उनको लो नहीं होने दिया. He said you are a genius, and then he proved that he is a genius. That is why Einstein says every child is a genius. उसको बाद में पता चला कि उसकी मम्मी ने बोला कि उसकी मदर ने नहीं दिखाया था लेटर जो उसको स्कूल से मिला था, तो उसने बोला कि इस लेटर में लिखा हुआ है कि यू आर अ जीनियस, सो माय चाइल्ड इज अ जीनियस, सो यू हैव टू प्रूव इट. सो उसने अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया हुआ. And see, he became the scientist. So it is on you what you tell your children. It is on you how you portray the things to the people. तो इसीलिए आप किसी को कुछ कहना भी है, सीधा थोड़ी कह दोगे किसी भी तरह से, बट बोलने का तरीका, बोलने का अंदाज, वो डिपेंड करता है कि आप किसी को एनकरेज कर रहे हो कि डिस्करेज कर रहे हो. दैट इज वाई ये जो जबान है ना, ये जबान आपको यहाँ से यहाँ गिरा सकती है, और यही जबान आपको यहाँ से यहाँ उठा सकती है. एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था अकबर और बीरबल का. कोई पंडित आता है और वो अकबर कहता है कि मेरी कुंडली देख के बताओ कि क्या है. तो वो पंडित ने बोला आप तो 3 महीने में मरने वाले हो. तो अकबर को बहुत गुस्सा आया, तो इसका गला काट दो और इसको जेल में डाल दो. तो उसको ले चला गया. तो बीरबल गया उसको मिलने के लिए. अब इसको गला नहीं काटो, अगर कुछ होगा कुछ तो होगा ना. तो बीरबल मिलने गया उसको जेल में. उसको बोला भाई तेरे को क्या जरूरत है ये सब कहने की. कहता मैं कैसे कहता हूँ, उसमें कुंडली में लिखा हुआ है वो ज्यादा देर जी नहीं सकते हैं. कहते जी नहीं सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ, लेकिन बोलने का भी तो एक तरीका होता है कि दूसरे को ऐसे ऐसे बताओ जिस तरह के वो एनकरेज हो. तो उसने बोला मैं कैसे बोल सकता हूँ. तो बीरबल ने कहा अच्छा मैं तुम्हारी कुंडली का बात मैं अकबर को सुनाता हूँ.
तो अगले अगले दिन जैसे बात हुई तो अकबर ने बोला ये क्या कह रहा है, कहते हैं नहीं इसने बहुत अच्छा बोला आपके बारे में। कहते क्या बोला है मेरे बारे में? कहते वो ये कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि आपका जो रुतबा है वो इतना पॉपुलर है कि आपके जाने के बाद भी आपको लोग सदियों तक याद करते रहेंगे, चाहे आप 2 महीने जिए, चाहे आप 4 महीने जिए, चाहे आप 2 साल जिए, आपकी महानता का गुणगान हर बार होता रहेगा। वो इतना खुश होता है राजा, इतना खुश होता है कि बस मजा आ गया। सो देर इज अ वे ऑफ सेइंग द थिंग्स टू पीपल। इफ यू से ब्लंटली तो आप तो 4 गाली खा ही लोगे, और अगर प्यार से बोल दोगे तो आपको सब याद भी करेंगे और ये वाह यार। अब बात वही हुई है, बात वही है, करने का तरीका अलग है। It's the same way when I train the teachers, I see there are a lot of flaws, a lot of things that they need to take care. बच्चों को कभी criticize कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो what I tell them, you don't have to criticize anybody. इसलिए मैं teachers की जो कमियां होती हैं वो भी कमी नहीं करती हूँ, मैं उनको तारीफ करती हूँ। wow, you did a wonderful job, great, आपने काम किया। अगर आप इसको इस तरह से कर लोगे और अच्छा होगा, इस तरह से करोगे और अच्छा होएगा, but you did a fabulous job. So everybody is hungry for appreciation. तो आपके बच्चे हों, आपके एल्डर्स हों, आपके यंगर्स हों, उनको कुछ भी कन्वे करना है, डांट के फटाक से जवाब देने के बजाय बड़े प्यार से उनको बोलो यार ये तो तूने बहुत अच्छा किया, ये आपने काम बहुत अच्छा किया, पहले तारीफ करो। कहानी वही है, पहले आपके पास जो है वो ग्रैटिट्यूड शो करो, देन यू विल अट्रैक्ट मोर थिंग्स। इट्स द सिमिलर वे व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल, यू टॉक टू देम विद एप्रिसिएशन, कि आप ग्रैटिट्यूड शो करो उसको, फिर उसके बाद जो एड ऑन करना है वो एड ऑन करो। सो दैट इज द लर्निंग फ्रॉम दिस थिंग, Okay, so magic practice number 12, magical people who made a difference. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful. Reread your list at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Find a quiet place alone sometime during today and make list of 3 people who made a difference in your life. Work through the list one person at a time. While talking aloud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. और वो अब आप उसको कैसे जी रहे हो. Just before you go to sleep tonight, hold your magic dog in one hand and say magic word thank you for the best thing that happened during the day. So that ends the chapter. So आपने 3 लोगों को आज चूज करना है जिन्होंने आपकी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट किया है. वो आपकी दादा, दादी, नाना, नानी, टीचर, ग्रैंडमदर, फ्रेंड, रिलेटिव, कुछ भी हो सकता है जो कि मैजिक क्रिएट किया आपकी लाइफ के अंदर और आज भी उनको आप याद करते हो. ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन you are giving, you are at a high vibrational state. When you are forgiving, you are again at high vibrational state. When you are honest, love, calm, motivated, gratitude, passionate, happy, efficient, creative, responsible, confident, supportive, if you are at high vibrational state. And when you are fake, when you regret, when you are worried, when you are self-centered, when you are arrogant, when you are angry, when you are uncertain, you are lonely, inferiority complex आ रहा है, stress आ रहा है, hopeless है, तो आप लो स्टेट में हो. तो आप जब लो स्टेट में होते हो आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते. सो देयर इज अ लाइन, when you above the line you attract many things. When you're below the line you cannot attract anything. You're just going down and down. Okay, so be that magical people. आप भी वो मैजिक बन जाओ, वो मैजिकल पीपल के अंदर उस कैटेगरी में आ जाओ जो कि दुनिया में दूसरे लोगों की जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट करते हैं. सो क्रिएट दैट मैजिक इन देयर लाइव्स एंड सी द थिंग्स हैपनिंग. वो आपकी माला ही जपता रहेगा. मतलब इट इज सो ब्यूटिफुल टू मेक डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ. ओके, दीदी लेट मी शो यू वीडियो. दीदी एक चीज पूछूं. हाँ जी, पूछिए.
दीदी किसी का बैड बिहेवियर भी हमें एनकरेज करता है कि हमें ऐसे आगे से हम किसी के साथ ऐसा बिहेव ना करें। इस Absolutely. So it is up to you how you take it on. या तो चार गाली सुनाते रहो, ये कहोगे यार this is a learning for me. I should not behave like this to anybody else. इसलिए कहते हैं आप लोगों को वैसे ट्रीट करो जैसे आप चाहते हो कि यू आर गेटिंग ट्रीटेड। जहां जैसे आप चाहते हो कि आपसे लोग बिहेव करें, आप लोगों से वैसे ही बिहेव करो। No matter what the people are behaving towards you, but you behave the way you expect them to behave. तो वो भी मैजिकल पीपल में आएंगे नहीं, क्योंकि आपकी तो लर्निंग है ना उनसे कि Abs- आपने वैसा बिहेव नहीं किया। नहीं। आप देखो, हम तब भी ग्रेटिट्यूड शो करते हैं उन लोगों जो हम चार गाली सुनाते हैं, हम तब भी उनको ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। नहीं करते तो हैं, तो उस मैजिकल पीपल में वो लोग आते हैं क्योंकि No. उन्होंने आपकी लाइफ को चेंज किया। अब मैं तेको बताती हूँ, when I was जो आपने अपनी एक स्टोरी बताई थी कि आपको नीचे बैठ के काम करना, तो आपने ये सोचा ना yes, कि मुझे ऐसा नहीं करना, तो वो मैजिकल उसमें आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही सेम हुआ था। so you because I always give gratitude to that person. But magical people जो होते हैं ना, magical people are called magical people when they make difference in different people's life. वो तो मेरा थॉट था, मेरे को एक एपिसोड हुआ, मेरा थॉट था और मैंने उसको एज अ चैलेंज लेके मैं आगे लेके गई। बट आई कैनॉट कंसिडर हर अ मैजिकल पर्सन। व्हाई? बिकॉज शी इज नॉट क्रिएटिंग डिफरेंस इन अदर्स लाइफ, शी इज क्रिटिसाइजिंग, ओके, ब्लेमिंग, शी इज कंप्लेनिंग, है ना। मैजिकल लोग वो होते हैं जो कि दूसरे की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। ओके। With 3 GB data in the cost of 300 rupees. मैं कह रही हूँ कि he has actually created history, you know, मतलब हर कोई। और दूसरी बात है, जो जो इसके एम्प्लॉयज हैं, एवरीबडी इज हैप्पी। मतलब जो रिलायंस में नौकरी मिल गई तो मतलब जिंदगी भर का उसका वो हो गया, ऐश हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दैट इज सच अ व्हाट अ ब्लेसिंग, यू नो। ऐसे लोग, सो दीज आर द मैजिकल पीपल हु हैव क्रिएटेड मैजिक इन पीपल्स लाइफ, है ना। सो let's has hats off to them, and this is how the people are there, you know। हम भी कितना बड़ा बड़ा विजन है, देख देख के कितना मजा आता है सोच के कि यार हमें भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ ऐसे ही कुछ बड़ा सा कर डाले हम भी। कितना मजा आ रहा है देख के। इट वाज रियली, बहुत लंबी वीडियो थी बट इट इज एक्चुअली इंस्पायरिंग, इट्स रियली रियली इंस्पायरिंग, यू नो। और उनकी जर्नी ही इतनी इंस्पायरिंग रही है। पता नहीं किसी ने मुझे दिखाया था, धीरूभाई अंबानी का एक ऑटोबायोग्राफी, इतनी बड़ी किताब है, इतनी बड़ी किताब, इट्स अ बिग बुक। और आप ये देखो, अपने फादर को कितना ग्रेटिट्यूड शो करता है ये, जस्ट इमेजिन। मतलब हर अभी भी वही कह रहा है कि मैं अपने फादर के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, मैं अपने फादर के नक्शे कदम पे चल, कितना ग्रेटिट्यूड भरा हुआ है उसके अंदर। एक वीडियो इसके साथ एक और इसी 40 इयर्स के में भी एक और बहुत अच्छी वीडियो भी थी, मैंने सोचा था वो वाली वीडियो है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग। वो वाली वीडियो में भी बिल्कुल ऐसे था, उसके अंदर भी बहुत कुछ उसने ऐसे ही बताया था कि मैं अपने फादर के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, मेरे फादर ने 4 चीजें सिखाई थी, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अ ब्यूटिफुल जर्नी दैट दे आर। वाओ, ग्रेट, अमेजिंग। सो लेट अस प्रोसीड। वीडियो देख लिया हमने। So what consumes your mind controls your life. Practice gratitude. Keep on practicing gratitude. और ये आपने एक्सरसाइज करनी है कि कौन से लोगों ने आपकी डिफरेंस क्रिएट किया है। दुनिया में केवल एक इंसान आपकी जिंदगी बदल सकता है, और वो कौन है? वो आप खुद हैं। कोई भी आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता, आप खुद अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो बाय शोइंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। आई एम टेलिंग यू, किसी भी सिचुएशन में हो, कैसे भी हो, आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। टुडेज असाइनमेंट इज राइट 10 ब्लेसिंग्स, और 3 लोगों को ग्रैटिट्यूड शो करना है।
कि वो उन्होंने आपकी जिंदगी में कैसे डिफरेंस क्रिएट किया है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं, जगह नहीं है, तो आपने उनको लेटर लिखना है, डियर दिस पर्सन, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ बिकॉज डक 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 डक, पूरा लेटर लिखोगे, 3 लेटर्स लिख देना फिर, ठीक है। एंड रात को मैजिक रॉक यूज करना है, पुट इट इन योर हैंड एंड जस्ट से थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे। Thank you. Anybody has to share anything? Tell me. मैम इनकी मूवी है ना वो जो गुरु भाई मूवी, वो इन्हीं की लाइफ पे बेस्ड है। हाँ। उसको वॉच करना जरा, बहुत मस्त है, अच्छा दिखाया है उसमें। और जो आपने वीडियो दिखाया उसमें हर जगह वो मुकेश अंबानी नजर आ रहे थे, और कहीं पे भी वो तो नजर ही नहीं आ रहे थे, मतलब कि he was there with his father. Yes, because he was the shadow of his father. He knew what his vision is. He knew what to do. वो छोटे वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो थोड़े से लाडले होते हैं, कहते हैं बाद में आएंगे, हम पहले बड़ा भाई कर ले। सो अगर वो भी अपने भाई के साथ एज अ शेडो बन जाता, उनको सीखता, उनको करता, तो शायद वो भी। बट टू बी वेरी फ्रैंक, इतने रिच होने के बावजूद भी मुकेश अंबानी ने पूरा अपने बच्चों पे कंट्रोल रखा है, और उनको नॉर्मल बच्चे की तरह, वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनको कोई सर्विस नहीं मिलती, कुछ भी। जो कि मुझे ये इस बात का बहुत खुशी थी, उनकी ये पेरेंटिंग का जो मैंने पढ़ा, विच इज सो अमेजिंग, यू नो। मतलब फ्राइडे उनको 5 रुपए मिलते थे, तो स्कूल में भी जो बच्चे उसको कहते हैं, तो अंबानी का बेटा है, तो भिखारी का बेटा 5 रुपए लेके आ गया है। ऐसे उनको ताना भी मिला करता था, तो वो आके बताता है, तो दैट शोज हाउ ग्राउंडेड दिस मुकेश अंबानी इज। दैट मेक्स अ डिफरेंस। वो कह रहा है कि ये अच्छा, उसके अंदर था कि वॉट एवर मनी इज दिस, यू नो, इट इज नॉट फॉर मी, इट इज फॉर द पीपल, और मुझे ये लोगों पे ही लगाना है और लोगों को ही मल्टी मिलियनेयर बनाना है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज थिंग, यू नो। Amazing. We must, you know, we also, हम अपने बारे में सोचते हैं। When we think about people, automatically your vision becomes bigger, you know. मैम वो एक्चुअली यही रियलिटी है, जब तक हम दूसरे लोगों को सक्सेस, जितने ज्यादा लोगों को हम सक्सेसफुल बनाएंगे, हम उतना ज्यादा सक्सेसफुल बनते हैं। दिस इज द गोल्डन रूल। Yes, very true. Thank you so much. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Shabba khair. Thank you, ma'am. Bye. Take care. Good night. थैंक यू मैम। Goodbye, Didi. Tomorrow is a practical थैंक यू class. मैम।